to climb one of the highest standalone mountain peak in the entire world. I was just chatting with her a few minutes back that she being a woman has so much courage, dedication, willpower, and this is, we are talking about, she's going to climb, which is going to take about good 7 days to move up, and it's going to take 5 days to come down from the mountain. And the temperature which she was talking about is going to be about minus 30, 35 out there. And I was just imagining that if I take an ice cube from my fridge and I hold it in my hand, I cannot hold more than 10 seconds because my hands freeze. And we are talking about somebody who's going to climb for 7 days and come down in a temperature of minus 35 to 40. I guess it's beyond our imagination. So for me, it's the strength, it's the willpower, and even if we are able to get some part of her, which will help us also to excel in the fields what we want to do. Because as human beings, we want to do a lot of stuff, but that first step taking, I guess, moves us all back, most of us. So definitely we want to learn a lot of from you today. It's all about your life journey, it's all about your challenges, which I'm sure is going to help a lot of us. And the people who will learn by one, we put in this, and we have a lot of our media respected team also, and I'm sure they will help us to push this, especially for the people who really want to do something in life, but they get stuck because either they don't get support from somebody, because that's where they get stuck. But with you, I've seen that willpower, that you were very, very persistent, that was, mujhe ye karna hi karna hai, irrespective of what happens, and here we are today. So thank you once again for all the help and support. This session for surely is one of the finest sessions. My team and I will have this for the last couple of months, I would say. And this, I'm sure, this is just the first step. The partnership which my brand and you are doing together, and I'm sure we are going to take this thing moving forward on that, right? So without saying much, thank you once again for having with us. Thank you, and we definitely, as a team, I guess we all will be with you every second, every minute. By the time you leave from here and by the time you come back, and when you come back, and I'm sure this gathering is only going to double and triple, because the learning of your journey, we all will be eager to learn more on that part, right? So we definitely want to welcome you on the stage, please, and we definitely want to learn as much as we can from your life journey, right? Thank you once again. Thank you. Thank you. Good afternoon. First of all, thank you so much, Rosier Hotels and Resorts, for inviting me here. Thank you everyone for being here. My name is Goldie Mishra. I'm 24 years old, Indian mountaineer. And about my journey, my mountaineering experiences, I have started my journey in back 2018. And when I did my BMC, Basic Mountaineering course. And it was selection-based process. So I got selected in NCC and then Basic Mountaineering course. After that, I did my advanced mountaineering course, and I did lots of trek. Actually, I led lots of trek, like corporate treks and celebrity treks and school groups. I did some of Indian highest expeditions like Mount Nun, Mount Jinkhan, and Mount Nandaluni. Now I am aiming for 7 summits. It's my dream. I already climbed Mount Elbrus. It's Europe's highest peak. I climbed last year. It's 5,642 meters tall. And now I'm aiming for Mount Kilimanjaro. Let me tell you about Mount Kilimanjaro first. Mount Kilimanjaro is Africa's highest peak, and it's stand tall 5,895 meters. And it's world's highest freestanding mountain. So it's been gonna challenging, but yeah, we are ready for this. And thank you so much, Rosier Hotel and Resort, for supporting me in my journey. They did a lot for me. Without their support, the expedition will possible. To be very honest, they did a lot. And of course, they give me some goodies also, some cookies, chocolate for make me feel energetic, and with tea, of course, for make me feel warm and comfortable. They give me some matchboxes and candles. और मुझे उसकी ज़रूरत भी है, because आपको पता है माउंटेन में कितनी ठंड है, -30. और मुझे बहुत खुशी हो रही है, because ये मेरा बेस्ट मूवमेंट है, क्योंकि
मैं अपने ड्रीम की तरफ एक कदम और आगे बढ़ रही हूँ। मैंने अपने 7 समिट में से एक माउंटेन क्लाइंब किया था, अब ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट रहेगा माउंट किलिमंजारो। मैं क्लाइंब तो फॉलो कर रही हूँ, लेकिन मैं इंडिया की सारी गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, बिकॉज हमारे सबके अंदर वो काबिलियत है कि हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं लाइफ में। सबके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन विल फेस टुगेदर, है ना। हमारे अंदर रहता है, हम कभी डर जाते हैं, फर्स्ट स्टेप लेने से डर जाते हैं, फर्स्ट स्टेप लेने के बाद जो होता है ना, उसके बाद डर जाते हैं, उसके बाद ही कहानी शुरू होती है। बिकॉज जब मैंने अपना BMC कोर्स किया था और मैंने फर्स्ट टाइम एल्टीट्यूड एक्सपीरियंस किया, बहुत टफ था मेरे लिए, बिकॉज एल्टीट्यूड में फर्स्ट टाइम गई, मेरी बॉडी एक्मेटाइज नहीं थी, मैं बहुत एग्जॉस्ट फील कर रही थी। कभी कभी होता है कि हम माउंटेन पे चढ़ रहे होते हैं और बीच में हमें ऐसा फील होता है हाफ वे में गिव अप कर देते हैं, यार बहुत हो गया, अब नहीं हो रहा, मतलब पैर नहीं उठ रहा हमारा, लेकिन मेंटली हमें स्ट्रांग रहना है। उस मोमेंट पे हमें पता चलता है कि हमें अपने लाइफ में अपने अंदर से मोटिवेशन लाना है, क्योंकि आपको ना सामने वाला कितना भी मोटिवेट कर दे, बट अगर आप अंदर से मोटिवेटेड नहीं हो ना, कभी कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। आप कब कर सकते हो? जब आप अंदर से मोटिवेटेड हो। तो लाइफ में मेरे को माउंटेनियरिंग ने बहुत कुछ सिखाया, एंड माउंटेनियरिंग ही मेरा प्लान है, प्लान भी है, ABCD and thanks once again Mr. Kapoor for inviting me, and Rosette Hotel and Resort for supporting me, and thank you everyone for being here. I'm very excited to share my journey, and my summit, after summit we'll meet again for sure, and we'll celebrate together. Thank you. वो करना है जो अपनी कभी लाइफ में ट्राई भी नहीं किया, तो चैलेंजेस बहुत होते हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी। We'll feel like giving up end moment पे, बीच पॉइंट पे, then we have only two options, coming down and going climb then submit. तो challenges hazards होते हैं, mountain hazards and altitude sicknesses, लेकिन अंदर का मोटिवेशन आपको हमेशा मोटिवेट करता रहेगा, एंड मैं फॉर श्योर हमेशा क्लाइंब करती रहूँगी ऐसे ही। थैंक यू। Of one of the peaks when you were climbing, which one was that? Okay, so I was climbing Mount Kinchin Khan in background 20 with NCC team. So in that moment, जब मैं summit push कर रहे थे हम, and we faced avalanche. So anybody know about avalanche? Do you guys know? Yes. Yes? Okay. So we faced avalanche, and वो moment ऐसा था like क्लाउड पूरा स्पार्क कर रहा है, एंड बहुत स्कैरियस्ट वॉइस आ रही थी, एंड हमें ऐसा लग रहा था कि अभी हम नीचे क्रेवास में चलेंगे। सो वी हैव क्रेवासेस इन माउंटेन्स, एंड वी हैव रोप्ड अप, एंड वी स्टेड इन द टेंट, लाइक वी केम बैक एंड वी डिसाइडेड टू स्टे इन द लाइक समिट कैंप, एंड वी स्टेड एट दैट कैंप, एंड जो हमारी बेस कैंप की टीम थी, दे वर लाइक ये लोग डेड है। So they decided कि, और उन्होंने assume कर लिया कि हम dead हो, because जो ऊपर का जो connections था वो सब टूट चुका था, and हमारा वॉकी-टॉकी काम नहीं कर रहा था, हमारे सारे कैंप्स बिखर चुके थे, and हम ऐसे पोजीशन में थे, ऐसे स्टेट में थे कि हमें नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, and we are like भगवान जी प्लीज बचा लो। और हम में से कुछ ऐसे भी थे कि भगवान जी इस बार बचा लो, अगली बार नहीं आएंगे। and वो ऐसा पार्ट होता है, लेकिन पता क्या है, ये एक पॉइंट है, उसके बाद ना जब दोबारा आपको व्यू देखते हो, समिट देखते हो ना, वी आर लाइक ओके दोबारा आना है, तो ये इट्स जस्ट अ पार्ट। Ma'am, please take your seat. It depends on like situation, because sometimes what happens if our body is not hypnotized much, so we can't spend much time on the top. Because our body is not used to on that altitude, so we want to like spend more time, but it's not possible due to that acclimatization and altitude. So we spend almost 30 minutes or maybe less than that, sometimes 5 minutes, 10 minutes, it's more like 30 minutes is max. I also have one question for you now. Yes. So, what inspired you to become a mountaineer? Okay.
and I went to that altitude for the first time, and I feel like अब मैंने उस टाइम पे स्नो भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था. I was 17 years old that time. उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि यही है जो करना है, यही है. So मैं जब भी माउंटेन्स पे जाती हूँ मैं हर बार इंस्पायर हो जाती हूँ. वो मेरा माउंटेन्स को लेके जो मेरा प्यार है वो बढ़ ही रहा है. तो that's it. Thank you. Okay. So yes, mountaineering is very risky game. We all know because वहाँ पे mountain hazards होते हैं, altitude sickness होते हैं. So personally I did wilderness pursuit course. So ताकि मैं अपना भी ध्यान रखूँ और अपने ग्रुप का भी ध्यान रख सकूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हम खुद से सॉल्व कर सकते हैं. अगर हमें क्योर पता है, हमें पता है कि अगर ओके हमें हेडेक हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, नोजिया हो रहा है, तो हमें क्या करना है. अगर हमें क्योर पता है तो हम कर सकते हैं, एंड अगर नहीं पता है तो वो प्रॉब्लमेटिक है. तो डू सम रिसर्चेस बिफोर क्लाइंबिंग, some preparation, some itineraries, researches, and that's it. How is Rosette supporting you in the upcoming expedition for different challenges? Okay. Can you use the mic? So Rosette supporting me like all over. Rosette handling my expedition itinerary and financial support, my logistic support, and also they are providing me some goodies I have already told you before. So basically, without Rosette, ये expedition बिल्कुल possible नहीं था, and they are helping me a lot in this expedition. So they are giving me strength to climb that mountain, because एक mountain को climb करने के लिए सबसे बड़ा challenge पता है क्या है? Finance. And they are giving me that support कि मैं अपने ऊपर ध्यान दे सकूँ. So they are giving me that freedom to climb, to fly. Yes. For this expedition? Okay. So it will take around 7 days to reach top and around 5 days to coming down. So it depends on person to person and itinerary. This month I am starting on 20th of October. Diwali वाले दिन. I'm going to climb with my local team over there. So like Sherpas and some of the person, they will record my journey. And yeah. Yes. Yes. Do I require for climbing expeditions? For climbing expedition, you will require mental strength more. So physically तो आप अपने आप को train कर लोगे, and अगर आप बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर हैं और जिम जाते हैं डेली, एंड आप मेंटली वीक हैं, आप सोच रहे हो अरे यार इतना चलना है मेरे से नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा. अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं एंड आपने डिसाइड किया है कि मुझे पहुंचना है, मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी, तो आप पहुंच जाएंगे. तो आपको मेंटल स्ट्रेंथ बहुत चाहिए इस कोई भी पीक क्लाइंब करने के लिए. इफ यू हैव मेंटल स्ट्रेंथ यू विल क्लाइंब दैट पीक इजीली, easily, not easily, but still you will make it to the top. And ma'am, apart from that, are Yetis are real? Sorry? Are Yetis are real? No. It's just a myth. So we have lots of risk over there, but it's not Yetis, because we have high altitude, then very high altitude, then extreme high altitude. I'm going to climb extreme high altitude. So after 18,000 feet, we'll climb extreme altitude. So we'll face lot of challenges over there. You have heard about frostbite, acute mountain sickness, and then high altitude thermal edema, and these kind of problems, and of course mountain hazards. So you carry in this expedition, will you carry the oxygen cylinder? Yeah, we'll carry it. Yes. It's compulsory for high altitude expeditions. Yeah,
एंड उस टाइम पे क्या हुआ था, भालूज ने हमला किया था हमारे कैंप साइट पे, एंड वी आर लाइक, हम ऐसे सिकड़े हुए थे एंड वो दे आर जस्ट पुशिंग दैट टेंट सो हार्ड, अब उसका पैक भी निकल गया था एंड उस टाइम पे तो बहुत डर लगा था। ऐसा सिचुएशन कभी कभी आ जाता है बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। सी ये कभी कभी हमारी गलती होती है बिकॉज जो भालूस होते हैं वो अगर आपका कोई खाना बाहर है कैंप साइट में तो वो उसको देखकर वो आ जाते हैं, तो अगर आप क्लीन रखोगे कैंप साइट तो वो कभी नहीं आएंगे एंड वो ग्रुप्स को अवॉइड करते हैं। अगर आप सोलो हो तो अटैक कर सकते हैं एंड अगर आप ग्रुप में हैं एंड आप सारा प्रॉपर माउंटेन एथिक्स का फॉलो कर रहे हैं तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। Good evening. Can you hear me? Yeah. Yes, This yes. is Sanjay Agarwal. So we are all from the media. Okay. So हमारा question आपको है, you say you are 24 now, right? And you started about 6 years back, your first peak. Right. That time you were 18. Right. And ये सब लोग ने काफ़ी सवाल पूछ लिए हैं. I want to know, एक तो आपकी where did you get your mountaineering training, कहाँ पे हुआ आपका? Who were your main instructors? And my friends want to know कि when you're climbing, so how big is your team? आपके साथ कौन कौन है? जो शेरपा, जब एडमंड हिलरी गए थे तो उनके शेरपा, आपके शेरपा कौन है? एंड व्हाट आर यू टेकिंग विद यू? एंड आपकी फैमिली भी इधर है तो वो लोग उनको एक फियर होगा, तो आपको कैसा एहसास हो रहा है? एंड आपने व्हाई यू चोज दिस वोल्केनो पीक? दिस इज अ वोल्केनो ना, तो आपने ये क्यों और फिर नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेक्स्ट आफ्टर दिस व्हेन यू कम बैक? आपका स्वागत होगा, उसके बाद व्हाट्स नेक्स्ट? Okay. So lots of questions now. टुगेदर. So I did my basic mountaineering course from NIM, Nehru Institute of Mountaineering. So after that, after completing that course, I got A grade, and then I have selected for advanced mountaineering course. I did my advanced mountaineering course in same year 2018 from HMI, Himalayan Institute of Mountaineering, and it's located in Darjeeling. दार्जिलिंग. Yes. And why I choose what? नहीं, वो सवाल ये था कि आपने किलिमांजारो जो है तंजानिया, इट्स अ वोल्केनो ना, तो आपने वो क्यों चूज़ करा? और आपने बोला कि 18,000 के बाद काफ़ी डेंजरस होगा, तो व्हाई डिडंट यू चूज एनी अदर K2 और आई डोंट नो मींस whichever? Okay, because मेरे 7 summit का ड्रीम है and it's a big dream. For this, I have to climb step by step because if I don't know how my body will react in 6,000 meter, how can I plan for 8,000 meter plus, right? So I can't plan directly for the Everest top Yes. because it's a big, huge mountain, right? So I will move forward step by step. So I climb Mount Elbrus, then I will climb Mount Kilimanjaro, then I plan for Mount Aconcagua next. Okay, wonderful. And I'm choosing this mountain because first of all, big reason, it's a part of 7 summits, and also I want some challenges in my life because being a mountaineer, I want some challenges and I want to get out from my comfort zone, and I will in future. और आपकी कौन आइडल हैं माउंटेनियरिंग में? हुज योर आइडल? हैव यू मेट दीज पीपल, बचेंद्री पाल एंड अनीता कुंडू? अच्छा, तो आपके कौन आइडल हैं बचपन से? हुज? She is very good mountaineer. बता दीजिए उनका. एक्चुअली माउंटेनियरिंग फील्ड में माउंटेन्स ही हमारा सबसे बड़ा आइडल होता है बिकॉज अगर आपको पहाड़ों से प्यार है, आपको पहाड़ों पे जाना पसंद है, तो आपको उनके रिस्क भी पसंद होंगे क्योंकि रिस्क हर जगह है. अगर आप सड़क पे चल रहे हो तो भी रिस्क है, घर में तो भी रिस्क है, हर जगह है. लेकिन अगर आपको भरोसा है खुद पे, अपने पहाड़ों पर, सो आपको लाइफ में हर ऑब्स्टिकल्स को पार करोगे और हर वो पीक क्लाइंब करोगे. तो उसके लिए इंटरनल इंस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है एंड आपका आइडल बेसिकली आपका जो पैशन है, आपका माउंटेन है, मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो माउंटेन ही मेरा सबसे बड़ा आइडल है, मैं उनको मानती हूँ. मैं बेसिकली पूछती हूँ माउंटेन को. गुड. कौशल पूछेंगे question. अच्छा गोल्डी, आपकी टीम और आपके बीच में क्या कोऑर्डिनेशन रहता है, और कोई ऐसा मोमेंट के जब आपकी टीम और आपके बीच में इतना डिस्टेंस हो गया हो कि ऐसा कोई फियर लगा हो कि अब मुझे नहीं मिलेंगे वो, या मैं उनसे बिछड़ गई हूँ, ऐसा कुछ? जब हम समिट के लिए जाते हैं एंड माउंटेन्स क्लाइंब कर रहे होते हैं एंड हमारा फाइनल डे होता है, तो उस टाइम पे हम रोप अप होते हैं.
ओके तो हम एक साथ ही क्लाइंब कर रहे होते हैं, एक साथ चल रहे होते हैं। एंड कभी कभी ऐसा फेस आता है कि कुछ क्लाइंबर्स थोड़े स्लो होते हैं, मतलब हमारे पेस को मैच नहीं कर रहे हैं या फिर हम उनके पेस को मैच नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम पे टीम डिवाइड हो जाती है। ओके एंड आपका शेरपा आगे निकल गया, अगर आप पीछे हैं तो वो धीरे धीरे डिस्टेंस बहुत बढ़ता जाता है। एंड उस टाइम पे अगर आप अकेले हो तो वो बहुत रिस्की सिचुएशन लगता है, बिकॉज यू डोंट नो वेयर द नेक्स्ट क्रेवास इज देयर। तो अगर आपको पता है कि आप चल रहे हैं, आपके पास I6 है एंड यू आर वॉकिंग एंड आपका कब पैर फॉल हो गया, तो यू नीड योर शेरपा विद यू एवरी टाइम। रिस्क तो देखो हर जगह ही है एंड माउंटेन्स में भी सेम है। एल्टीट्यूड सिकनेस का रिस्क रहता है, बिकॉज अगर आपने ठीक से ध्यान नहीं दिया अपनी बॉडी को और आपने एक्सरसाइज नहीं किया तो आपको एल्टीट्यूड सिकनेस हो सकता है। एंड वो थोड़ा बहुत फियर रहता है, फियर नहीं है, मतलब अपने आप को ध्यान रखना, माउंटेन एथिक्स का ध्यान रखना, तो बस यही है। जो वाटर इनटेक अगर राइट, प्रॉपर बहुत बहुत ज़रूरी है, बिकॉज क्या होता है कि हमारी ह्यूमन बॉडी उस एल्टीट्यूड के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, राइट। तो उस एल्टीट्यूड में वैसे भी हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है, बिकॉज वहाँ पे बहुत थिन एयर रहता है। एंड यू वांट टू नो लाइक डीप में, सो क्या होता है कि 8000 फीट से 12000 फीट तक आपका एल्टीट्यूड कंसीडर किया जाता है। एंड अबव 12000 फीट, सो लाइक विल कंसीडर 12000 फीट टू 18000 फीट वेरी हाई एल्टीट्यूड, एंड अबव द 18,000 फीट विल कंसीडर एक्सट्रीम हाई एल्टीट्यूड। इन दैट सिचुएशन क्या करते हैं हम, लाइक अगर आप 10,000 फीट से ऊपर जा रहे हो, क्लाइंब कर रहे हो, तो 10,000 फीट से ऊपर आपको एवरी 1000 फीट आपको 1 नाइट स्पेंड करना है एंड एवरी 3000 फीट आपको 2 नाइट स्पेंड करना है। सो इट्स अ माउंटेन थंब रूल। सो बीइंग अ माउंटेनियर कभी कभी हमें चांस नहीं मिल पाता, सो फास्ट एसिंग करना है, कभी कभी ऐसा लगता है कि ओके वी डोंट हैव मच टाइम एंड वी सेट अवर आइटनरी टू शॉर्ट, सो उसमें आपको एक्मेटाइज नहीं होगी बॉडी, इसका खतरा रहता है। सो वी हैव लाइक रिस्क फॉर, अगर हमारी बॉडी एक्मेटाइज नहीं है तो विल टेक प्रॉपर वाटर इनटेक और प्रॉपर आपको कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ऑल्सो एल्टीट्यूड सिकनेस में भी अगर बात करें तो पहले अगर आप एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं तो पहले AMS होता है, एक्यूट माउंटेन सिकनेस, और उसमें आपका बेसिक सिम्टम्स होते हैं, कभी कभी पहचान नहीं पाते हैं। हेडेक हो रहा है तो डोलो ले लिया, तो हमने ठीक है ठीक हो जाएगा, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो अगर आपको AMS हो गया तो आपका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, आपको नीचे वापस आना है। अगर आपको AMS हो गया, आपको नोजिया फील हो रहा है, वॉमिट फील हो रहा है एंड हेडेक फील हो रहा है, उस टाइम पे अगर आप और क्लाइंब करेंगे और ऊपर जाएंगे तो ये आपका डेथ का रीज़न भी बन सकता है। सो इट्स सो रिस्की, वो आगे बढ़कर आपका और एक्सट्रीम लेवल पे आपको हर्ट कर सकता है। फिर वो प्रश्न शेरपा वाला आपका रह गया ना आंसर, okay, कि हु इज योर शेरपा, आपका रेगुलर कोई है, उनके बारे में थोड़ा सा बता दें। So I'm climbing with Mr. David. He's a local, like he has a lot African, of African. African Sherpa, and he climbed a lot. He has like very good experience in climbing, and I have worked with him like before also. Like I have sent many climbers with him, so I have good personal connection with him. So I trust him and he's my Sherpa. Like basically if we climbing any mountain, so we climb with our Sherpa and he's the main. If like you trust your Sherpa, your Sherpa trusts you, you are safe, you are in safe hands. वो आपका कितना वजन कैरी करते हैं शेरपा, और आप कितना वजन कैरी करेंगे नहीं, फ्रॉम द it बेस depends. I कैंप? will carry my weight. हाउ मच So it will like around 15 to 20 kgs. इक्विपमेंट? Yeah, my equipment, my personal gears, like we'll carry our harness, our helmet, our personal gears, our equipment. So it's around 15 to 20 kgs. Right. And our Prime Minister नरेंद्र मोदी जी स्पोर्ट्समैन और सबको encourage कर रहे हैं, and स्वच्छता अभियान के दौरान there's a lot of garbage, you know, clean our cities, Right. and जो पहाड़ पे जा रहे हैं तो it's always there कि वहाँ पे भी जो mountaineers जा रहे हैं they are leaving something, Right.
देन देयर इज अ टीम ऑफ अदर माउंटेनियर्स जो जाके उसको कलेक्ट करते हैं. तो आप लोग उसको कैसे हैंडल करेंगे टू कीप अवर एनवायरनमेंट क्लटर फ्री? बीइंग अ माउंटेनियर मैं सबको बोल रही हूँ, अगर आप माउंटेन पे जा रहे हो तो टेक योर गार्बेज बैग विद यू. क्या होता है कि हम माउंटेन्स पे चल रहे होते हैं एंड हम बहुत डिहाइड्रेटेड फील करते हैं, उस टाइम पे हम टॉफ़ीज़ खाते हैं, ठीक है, तो इट्स अ वेरी बेसिक. सो हम टॉफ़ीज़ चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं, तो उसका रैपर क्या करता है, जो बिगनर होते हैं या फिर आप एथिक्स को फॉलो नहीं करें माउंटेन एथिक्स को, तो वहीं पे फेंक देते हैं. वो धीरे 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 गार्बेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. सो मेरी टीम और मैं हमेशा गार्बेज बैग कैरी करते हैं. अगर मैं जा रही हूँ तो मैं इस बात का ध्यान रखती हूँ कि मेरे थ्रू कोई भी गार्बेज माउंटेन पे ना रहे. अगर मैं चॉकलेट खा रही तो वो मेरे बैग में जाना चाहिए, पहले गार्बेज बैग में, देन आई विल पुट माई गार्बेज बैग इन माई मेन बैग. एंड देन जब हम रिटर्न आते हैं तो विल मेक श्योर कि हमारे पाथ पे कुछ नहीं रहना चाहिए. बिकॉज हम क्या करते हैं, हम पहले क्लाइंब करते हैं, उस टाइम तो नहीं, जब हम वापस आ रहे होते हैं सो हमने देखा कि रूट पर ये पैकेट है, सो विल कीप दैट पैकेट इन आवर गार्बेज बैग. क्योंकि ऐसा हम नहीं कर सकते कि हम पूरा बैग भर के ले आए. सो लेकिन जितना हमसे हो सकता है हम उतना तो कर ही सकते हैं, बिकॉज स्मॉल स्टेप से ही बिग इम्प्रूवमेंट होता है, राइट. आई थिंक उसके लिए आपको ताली भी. एक और सवाल आ रहा कि जब आप क्लाइंब कर रहे हैं, आपका टोटल जर्नी रहेगा, तो उसमें जो आपका वेट है व्हेन यू क्लाइंब, टुडेज वेट और व्हेन यू एट देयर, एंड व्हेन यू कम बैक, so how much weight loss is there any loss or gain? मतलब वो समझ रहे हैं हम लोग. It happens sometime but not frequently with me, because last time जब मैंने माउंट नून क्लाइंब किया था एक बार, मैं वहाँ गई, वो 1 month का एक्सपीडिशन था. मुझे लगा कि मैं वेट लॉस करके आऊँगी. When I came back मेरा वेट बढ़ गया था. बिकॉज क्या होता है ना कि हम माउंटेन में रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसके साथ हम खाते भी बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि हमें फिट रहना है, हमें एनर्जी चाहिए वो क्लाइंब करने के लिए. तो अगर आप राइट आइटनरी फॉलो करोगे, राइट फूड चेन फॉलो करोगे, तो ज़्यादा वेट लॉस नहीं होता. बिकॉज वेट क्या मतलब फैट लूज होता है बस. और अगर आप राइट आइटनरी फॉलो करो तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है वेट में. मेरा तो आखिरी सवाल है, मेरे फ्रेंड्स का भी था कि जब आप जा रहे हैं तो क्या इंडियन गवर्नमेंट या आर्मी का कोई आपको सपोर्ट किसी स्टेज पे मिलेगा? वुड यू गेट सपोर्ट? एंड द इंडियन फ्लैग, आर यू कैरिंग द इंडियन फ्लैग? सो इज द इंडियन फ्लैग, मतलब हाउ डू यू गेट दैट इंडियन फ्लैग? अपने मार्केट से खरीदा या इज इट गिवन बाय द मिनिस्ट्री? कुछ थोड़ा सा बताएं उसके बारे में. वेयर डू यू गेट दैट सपोर्ट? फ्लैग कहाँ से लेते हैं? आई एम रिप्रेजेंटिंग रोसेट होटल्स एज Yes. अ लॉर्ड ऑन द टॉप ऑफ माउंट किलिमंजारो, Africa's highest peak, and I am proudly representing. With that, I am representing India. So I have my roseate Flag. banner Right. and roseate flag and Indian flag with me. So we'll do that flag of ceremony just अभी होगा. after that. Yes. तो जो फ्लैग आप उधर होइस्ट करेंगे, जी. वो फ्लैग आपने कहाँ से लिया? क्या डायमेंशंस हैं? I have my own flag. मैं हर जगह लेके जाती हाँ, हूँ. वो डायमेंशंस क्या है मेरा उसके? favorite, okay, dimensions. फ्लैग कितना बड़ा होता है? मतलब इधर तो हम जो देख रहे हैं फ्लैग, वही Yes. बड़ा, इतना बड़ा I have रहता है same क्या? flag. सेम फ्लैग. So I will carry my flag. मतलब I have climbed many peaks and I have carried that flag with me every day. वो छोड़ के मेरे आते हैं पास ना? यही वाला flag रहता है. वो मेरे। छोड़ के आते हैं या ले आते हैं नहीं ले वापस? नहीं मेरे पास एक flag है. अच्छा, मैं वही- हर जगह carry करती हूँ उसे. Oh, good. मेरा favorite flag है. थैंक यू. I think 3 to 5 feet dimension. It's नहीं बड़ा है. big. Pretty big. I am stopping my questions. The Rosette people have to ask so many questions. There's a whole Yes, please. 100, 200 people to see you off. So, thank you. नहीं वो तो करेंगे, नहीं पता नहीं तो उसमें. Basically, wherever we climb and we go to another country, so we have some restrictions and criteria. So we have to fulfill that criteria. अगर मैं
aware of all the checklists, so we have to fill that criteria also. Thank you. Thank you so much. How do you prepare for your expedition? What is the training that goes on a couple of months before your expedition? So, whenever we prepare for an expedition, जैसे अभी मैं किलिमंजारो के लिए जा रहा हूँ, but I am mentally prepared कि मुझे इसके बाद Aconcagua climb करना है, right? So, जो preparation होता है वो बहुत टाइम पहले से start हो जाता है, like 6 months before, and we prepare ourselves mentally. Manifestation सुना है? Manifestation. तो हम manifest करते हैं, mentally prepare करते हैं खुद को, then physically prepare करते हैं, cardio session, and then breathing exercises, load fairy. एंड उसके लिए क्या करते हैं, बेसिकली हम सिर्फ रनिंग नहीं करते हैं, लोड लेकर जैसे 5 kg 10 kg डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन कितना आपकी कैपेसिटी है. स्टार्ट करो 2 kg से 3 kg से, देन वी टेक आवर बैग विद अस एंड देन फिर हम रनिंग करते हैं. जिससे क्या होता है, अगर हम एक कहावत है, अगर आप ज़मीन पे दौड़ पा रहे हैं तो आप माउंटेन पे चल पाएंगे. तो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, लोड लेके रनिंग करते हैं ताकि हम वहाँ पर अच्छे से क्लाइंब कर सकते हैं. Thank you so We much. got a few more things. Probably. We got a cake also for ma'am for cake cutting. You can get that out. पर्सन टू पर्सन अगर मैं कौन से भगवान जी पे बिलीव करती हूँ वो डिपेंड करता है, वो हमारी पर्सनल प्रेयर्स रहती है. नहीं सुना दीजिए ना सबको, हम भी करेंगे, हम भी माउंटेन में पहुंचेंगे. देखो नहीं कौन सी गीता कर रहे हैं, बाइबल कर रहे हैं, कुरान, कोई भी डजेंट मैटर ना किसमें, मतलब एवरीबडी वांट्स टू लर्न. आप यूट्यूबर हैं, सो पीपल वांट टू नो. कितने सारे सवाल होंगे, माता जी का आशीर्वाद होगा. फिर रात को सोते समय भी तो करेंगे ना कि आई हैव नाउ, मैं अभी जिंदा हूँ और कल मेरे को दूसरी क्लाइंब करनी है. जब हम माउंटेन क्लाइंब करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये रिस्ट्रिक्टेड है किसी भी रिलीजन से, राइट? किसी भी रिलीजन का पर्सन क्लाइंब कर सकता है. तो अगर एक मुस्लिम है तो वो कुरान पढ़ेगा, हिंदू है तो गीता, उसमें भी हमारे भगवान जी हैं. तो हम देखते हैं जैसे कोई शेरों वाली माता जय माता दी बोलता है, कोई जय भोले बाबा बोलता है. तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि आपको कहाँ से स्ट्रेंथ मिल रही है. ये हमारा इनर स्ट्रेंथ तो हम है. जानना चाह रहे हैं गोल्डी मिश्रा की कहाँ से आ रही है So I guess sir, स्ट्रेंथ. take सो a break. या Got प्लीज lots of things. फाइन फाइन carry on. सर. थैंक यू सो मच. Thank you. Thank you. And we definitely going to have the cake cutting. And the family can come back, please. Everybody. Ma'am, please आइए. Please. प्लीज सर. ये आपके साहस के पीछे जा रहे हैं. जाने जा रहे हैं. Please. You need to cut with the family. Please. Ma'am, please आइए. Please. प्लीज सर. प्लीज. She can be along with you, ना, because उनको इंस्पिरेशन मिलेगी आपके बात में. Please, मैम, काटिए आप. Please. सर प्लीज. नहीं, आप इधर आइए. आप इधर आओ. Come.